Guys, I'm audible. Could you please confirm the chat box? Very good morning to all. Everyone, could you please confirm in the chat box? I'm audible to all of you. Vivo V2135, प्लीज आप अपना नाम बदल दीजिए, हमको पता चल गया आपके पास कौन सा मोबाइल है, राइट। एंड गाइस, जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो गए, क्विकली आपने अपने ग्रुप के अंदर जहां जहाँ पे भी आपको लिंक मिला है वहां पे आप रिमाइंडर डाल दीजिए कि सेशन हैज बीन स्टार्टेड, तो बाकी जनता जो वेट कर रहे हैं वो भी क्विकली ज्वाइन हो जाएंगे। गैस, जब तक अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्विकली आप लोग अपने अपने ग्रुप्स, कॉलेज ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप्स, जहाँ जहाँ पे भी आप हो, किसी ने मोबाइल नंबर रखा हुआ है भाई, मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए आपके नेम में जाके। आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके सबसे पहले आपका नाम ही दिखेगा, आपसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। 2 मिनट और वेट करते हैं।
Angu sir, can we start the session because it's already 70 plus participants? I think we're all set to start the session. I hope I am properly audible. A very good morning to one and all. Angu sir, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Let's Yes, start I this. think we should start the session. There are already 72, 73 odd participants. So, everyone, a very good morning to one and all. And I request for those who want their friends, their relatives, or for those who just want to know what this क्रैक कैट is all about. अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो क्रैक कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सो इट विल बी अ गुड सेशन फॉर द नेक्स्ट 30-35 minutes. We'll try to make sure that will give you a glimpse, an idea of what this crack cat is all about, how to do and specifically this session becomes very important because we now have very few days there for cat specifically. अगर मैं current year की बात कर रहा हूँ और next year के लिए भी, to be honest with you, for those who are planning for cracking cat 2025 as well, there are certain basic things but which needs to start. There are students जो मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग के अंदर कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से नहीं करना. वी जस्ट काइंड ऑफ delay the things. So we'll talk about all these things in today's session. So Ankur sir, I think we're all set to start the session. Please go ahead. Okay, great. So, just a minute. Yes. Am I audible, sir? Yes sir, absolutely fine. Let's go ahead sir. ओके सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत बार जब अपन क्लासेस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो डिस्कस करते रहते हैं तो जो मेजर कंसर्न आता है कि सर कैट को क्रैक करना है या तो सर उसके अंदर क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए. आज के सेशन का अपन ने जो नाम रखा था विच इज बहुत अच्छा है कि हाउ टू क्रैक कैट इन फास्ट अटेम्प्ट. बट यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे कि फास्ट अटेम्प्ट से क्रैक करने से मकसद है कि अपन कैसे उसको टैकल करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे, आप कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 10th 12th परसेंटेज, बहुत सारी ऐसी समस्या होगी जो इसके साथ कनेक्टेड है. तो वो So, Ankur sir, सारी before, sorry to interrupt, before we go ahead, guys, quickly in the chat box to all the 80 participants who have just joined in, good. So, we just want to understand what are your expectations from this session. आप संडे को 11 बजे काफी कुछ चीजें छोड़ के काफी कुछ चीजें सेक्रीफाइस करके आ रहे होंगे. सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन रादर देन रनिंग अवर फॉर्मल पीपीटी. वी वांट यू and let's see that how our PPT is in sync with what you are expecting from the session. So आपके क्या questions हैं, क्या concern है, क्या आप expect कर रहे हैं session से, quickly in the chat box please, quickly. You can either give it to Ankur sir or me. आपको दोनों host co-host दिख रहे होंगे. Quickly in the chat box please. Ankur sir, आपका जो जो questions आ रहे हैं, please make sure we are addressing those questions or not. I'll also do the same. And here we go. We get the poll just now. Out of the 80 odd participants, we have विचार 40 odd students preparing for CAT 2024, 18 for CAT 2025, and there are some students for CAT 2026 as well. Good. So there are things for you guys. So don't worry at all. Yes. Quickly in the chat box, what are you expecting from this session? Here we go. I want strategy and plan. एक चीज आ रहा है कि मुझे strategy और plan चाहिए. अंकुर सर प्लीज एनोटेशन बंद कर दीजिए अगर आप अगर कोई और चला रहा है तो. How to prepare for LRDI and VARC. Okay. प्रशांत सर एक मिनट. ये जो भी लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं आप अपनी कलाकारी दिखाना बंद कर दीजिए. हमको पता है कि आप अच्छे ड्राइंग बनाते हो, मैं आपको मौका दूंगा आपके करियर पे ड्राइंग बनाने के लिए. तो बिल्कुल वहां पे बंद रखिए अपने अपनी करामतें. मैं आपको रिमूव कर दूं, उनसे बेहतर है कि अपन एंजॉय करें. शिवांगी बेटा आपको अलग से बोलूं. Guys, please, let's Ankur sir, we can disable the annotation. That's perfectly fine, I think. Okay, so how to practice for LRDI? So we are talking about LRDI is becoming a major concern. VRC Smith is saying, okay, any other quickly. Fatapat, what are you expecting from this session so that we can keep the session accordingly? We can keep session aligned accordingly quickly. तो Lot of यहाँ पे problem in VRC Smith. I'll try to solve your lot of problem. I'll try. I don't know. मैं इस 30-40 मिनट में solve कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, but मैं plan जरूर दे दूंगा. Anything else? Ankur sir, any chat box for anything coming in your chat box? Personal time message. to time to crack cat sorry, tricks to crack cat 24 variety type of the question, maximum guidance. I think majorly we have covered strategy of the tips crack How to approach quant question? Okay, Shraddha, we'll talk about that as well. कैट एग्जाम along with job. I think वर्किंग प्रोफेशन वाली भी जनता है यहाँ पे एग्जाम प्रिपेयर. Avantika is saying again, VRC, good. Strategy, sir. Strategy बताइए. Okay. Varieties of CAT QA questions. Garvit, definitely you will find this in our session as well. Looking forward to have the best strategies.
to solve DILR and RC section, Vimal, there is nothing called as best. There are strategies. To be honest with you, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है strategies हैं, किसी के लिए क्या काम करेगी और किसी के लिए क्या काम करेगी. हाँ, so we can definitely give you the strategies best. I don't know whether I'll be able to give you the best strategy or not. Sir, if anyone didn't study anything, so how can we make plan for CAT 2024? I think 100 days remaining. Yes, so hum bilkul 100 days remaining, but then it depends on the kind of college you are targeting. We'll definitely talk about it. Time management for a beginner, we can definitely discuss. Is it possible to crack 2024 if I start studying now? I am from a CA background. Now I'm switching to MBA. बिल्कुल जतिन, मैं लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगा आपको, राइट. सो फॉर दोज जिनके स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आज हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं और इस जनरल बात के बाद स्पेसिफिकली कई चीजें वेरी करेंगी और उसके लिए मैं और अंकुर सर अपना नंबर दे के जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग. यस अंकुर सर, आई थिंक वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट द सेशन. आवर पीपीटी इज वेरी मच इन अलाइन विद व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस सेशन. प्लीज वी कैन स्टार्ट. यस सर. सो जो टुडे अपन यहाँ पे बात करेंगे आज के सेशन के अंदर ऑल अबाउट एमबीए, बिकॉज कैट के एग्जाम को जो अपन करेक्ट करने जाएंगे उसके पहले एमबीए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सर क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. कॉलेजेस एंड कट ऑफ्स, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर मेरी प्रोफाइल क्या है, उसके बेस पे मुझे क्या कॉलेजेस एंड कट ऑफ्स मिल सकते हैं. दैट विल डिस्कस हियर एकेडमिक्स प्रोफाइल एंड इट्स इंपॉर्टेंस कि आप अभी क्या स्टेप ले सकते हो और उसके बारे में क्या करना चाहिए. क्रैकिंग कैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज द मोस्ट क्यूरियस क्वेश्चन जिसके लिए आई थिंक ये जनता आई है हिंदुस्तान के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से सुनने के लिए. तो उसके बारे में अपन बात करेंगे. लास्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के होंगे अबाउट द ओपन डिस्कशन, तो विल डेफिनेटली कवर, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट हियर. सो गाइस, अभी जो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपके जो चैट बॉक्स है उसको थोड़ा आराम से स्टॉप करने की कोशिश करना है, बिकॉज अपन यहाँ पे जो भी हम लेके आए हैं आपके लिए पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते. 20-25 मिनट्स के अंदर डिस्कशन को हम खत्म कर देंगे और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मीनवाइल आपके कोई भी क्वेश्चन आपके दिल के अंदर आते हैं, प्लीज आप नोट डाउन करके रखना. डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा बहुत बात करने के लिए, राइट. सो द डाइवर्स माइंड्स अंडर द सिंगल रूफ. गाइस, कभी भी अपन जो एमबीए करने जाते हैं, राइट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कौन से टाइप के स्टूडेंट्स जब आप एमबीए करने जाएंगे तब आपके साथ होंगे. आपके क्लासरूम के अंदर जहां पे आप बैठेंगे, जो 20 स्कूल्स के अंदर आप पढ़ रहे होंगे, मैं टॉप आईएम्स की बात करूं, मैं बेबी आईएम्स की बात करूं, या उसके अलावा जो एमडीए गुड़गांव ताप में जो भी कोई अपन एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट की बात करें जो अच्छे इंस्टीट्यूट है. मैंने जो लास्ट सेशन के अंदर भी बोला था कि 100 टॉप 20 स्कूल्स का जो मैंने लिस्ट दिखाया था, उनके अंदर कहीं पे भी पढ़ने जाएंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ते होंगे. सारे हमारे स्टूडेंट है जो वहां पे पढ़ रहे हैं, उसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो. वहां पे इंजीनियर्स, सीए, बीकॉम, लिबरल स्टडीज के स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशन, एग्रीकल्चर, ये सारे बैकग्राउंड के स्टूडेंट वहां पे होंगे. सो कभी भी कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई सर जो कॉलेजेस 20 स्कूल्स होती है उसके अंदर कौन से टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को वहां पे एंट्री मिलते हैं. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिथ घूमते होते हैं मार्केट के अंदर, तो उसके बारे में आज अपन बात करेंगे. यूट्यूब के अंदर आपको दिखता होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे, राइट. सो सो वहां पे जो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, राइट. यस प्रशांत सर, एनी कमेंट्स फ्रॉम योर So, साइड? guys, why we have mentioned all these things is understand very importantly, right? मैं ये सेशन हमने जो रखा है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जिनको प्रिपरेशन का टाइम चाहिए व्हाटसोएवर, ठीक है, जिनको वो हमारे से स्ट्रैटेजी चाहिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए. बिफोर वी गो हेड, एक चीज इस स्लाइड का महत्व इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो अंकुर सर ने बोला, ये सारे अलग अलग स्ट्रीम के लोग एमबीए करने जाते हैं, राइट. फर्स्ट थिंग बिफोर यू गेट इनटू कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना, बिकॉज आई एम श्योर काफी ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, ये कैसा कॉलेज है, ये कैसा कॉलेज है, और इसीलिए मैं पूरा कॉन्टेक्ट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों यहाँ पर कि आप ये देखिए कि किसी भी स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है वो एमबीए करने क्यों जाता है, राइट. चाहे वो सीए का है, इंजीनियरिंग का है, बीकॉम है, लिबरल स्टडीज है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एग्रीकल्चर में है, बिकॉज द आइडिया इज एमबीए गिव्स यू दैट एलिवेशन, right. One after your MBA it gives you some elevation, right. और वो elevation क्या होता है in terms of your salary, in terms of your growth, in terms of your exposure. So varied background के बंदे MBA करने जाते हैं. तो ये हमने example इसलिए लिए because when we just go ahead and हम लोग हमारा अगर diverse background देखते हैं students का, तो हर तरीके का student मिलता है, क्योंकि हर तरीके से बच्चे को ग्रोथ मिलती है ना. मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप अपना कॉलेज सिलेक्शन करेंगे और हम जब हमारे कॉलेज डिस्कशन की बात करेंगे, आपको ये देखना है कि मेरा जो भी गोल है विद रिस्पेक्ट टू माय एलिवेशन, विद रिस्पेक्ट टू माय सैलरी, विद रिस्पेक्ट टू माय पोजीशन, वो मुझे एक एमबीए कॉलेज दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, मेरे को एक अच्छा आरओआई दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा. तो इसीलिए एमबीए एज अ स्पेशलाइजेशन, पहली चीज, एज अ डिग्री सबके लिए अच्छा है, बिल्कुल करना चाहिए.
और करना किस लिए चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ, हर चीज की ग्रोथ के लिए। अगर मुझे लगता है कि मेरी मास्टर्स जैसे बीकॉम के बाद एमकॉम करूं, या बीबीए के बाद लेट्स से मैं एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करूं, या मैं लेट्स से इंजीनियरिंग के बाद एमटेक करूं, मुझे मेरा ज्यादा पैसा कौन से अच्छे कॉलेज में मिलता है, अकॉर्डिंगली वहां डिसीजन लेना चाहिए। दैट्स एज इजी एज दैट। यस अंकुर सर, ओवर टू यू। इसके अलावा इसका जो मेजरली जो आपको बेनिफिट मिलेंगे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द काइंड ऑफ द लिबरल स्टडीज या एग्रीकल्चर या ऐसे कुछ स्ट्रीम्स है जो जहाँ पे आपको डाइवर्स एकेडमिक्स का भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। आपकी कैटेगरी है और जेंडर डाइवर्सिटी बहुत सारी चीज वहाँ पे कंसिडर की जाती है, तो उनका भी आपको बेनिफिट मिलता है डेफिनेटली। जहाँ पे आप देखेंगे मेडिकल लाइन के स्टूडेंट, सीए, लिबरल स्टडीज, एग्रीकल्चर, अपार्ट फ्रॉम द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो होते हैं उनको भी वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिलता है और स्टूडेंट के लिए ज्यादा स्कोप है। सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दो स्पेसिफिक स्ट्रीम्स तो आपके लिए और बेहतर ऑप्शंस होगा कि आपको अच्छी कॉलेज में जाने के आपके और बेहतर मिलेगा। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो नॉन जो कॉमर्स वाले या बीकॉम वाले, बीबीए और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे 42% IIM अहमदाबाद के अंदर जो करंट बैच पढ़ रहे हैं उसके अंदर आज भी इंजीनियर पढ़ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, राइट। तो हर किसी को इक्वल यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं क्विकली, राइट। अपन आई एम श्योर कि मेरी स्क्रीन चल रही है। जो सर समझाने की कोशिश कर रहे थे, आई एम श्योर कि आप अंकल को जानते होंगे, संजीव अस्थाना सर है, आप इनको जानते होंगे बिल्कुल। ये पतंजलि फूड के अंदर आपने देखा होगा, रुचि सोया के अंदर उन्होंने काम कर रहे हैं, राइट। एंड वो बीकॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने बीकॉम किया हुआ है। एंड आप उनके प्रोफाइल देख सकते हो कि कैसी प्रोफाइल को कैसे अपॉर्चुनिटी और कहाँ पे मिलते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन जिसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर कि स्वदेश बेरा। तो द आइडिया इज गाइस, हम जो सर एक बार लास्ट स्लाइड पे जाएंगे प्लीज। अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर संजीव अंकल ने सिर्फ, मुझे आप सब यस और नो चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई कीजिएगा प्लीज, अगर संजीव अंकल ने सिर्फ बीकॉम किया होता लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो ये जो कॉम्पनसेशन की हम बात कर रहे हैं क्या इन्हें मिलता? यस और नो, क्विकली इन द चैट बॉक्स, क्विकली इन द चैट बॉक्स, फटाफट। संजीव अंकल ने अगर सिर्फ लखनऊ में रुक जाते तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिलता? नहीं। बीकॉम वाला बंदा जा सकता है, हाँ। इरमा इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कई बार देखा है, कल ही हम लोग एक किसी स्टूडेंट से बात कर रहे थे, यार जस्ट बिकॉज हमारा प्रोफाइल, मैं इस पे हालांकि थोड़ी देर बात करूंगा बाद में, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब क्या मैं एमबीए का सपना छोड़ दूं? नहीं, मेरे पास और एमबीए के कॉलेजेस हैं, हाँ, बट मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा क्वालिटी ऑफ कॉलेज से, मैं अच्छे कॉलेज ढूंढूंगा। और भारत के अंदर और भी कॉलेज हैं जिनको शायद मेरे 10वीं 12वीं के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे अंकुर सर। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये मिस्टर बेहरा की जो बात कर रहे हैं, ये मिस्टर बेहरा इज एचआर फ्रॉम टाइटन कंपनी। अगर इन्होंने सिर्फ सोचिए बैचलर इन आर्ट्स करके छोड़ दिया होता तो इतनी अच्छी पोजीशन पे कभी नहीं पहुंचते। ही हैज डन हिज एमबीए फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। नेक्स्ट अंकुर सर, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं विनीता आंटी का, राइट। विनीता आंटी जो है, अंकुर सर आर्यदेव, विनीता आंटी जो है शुगर कॉस्मेटिक, सब इनको जानते हैं, शार्क टैंक पे आती हैं। अगर इन्होंने आईआईटी मद्रास से सिर्फ आईआईटी करके छोड़ दिया होता तो शायद उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होता। नेक्स्ट अंकुर सर, हाँ। इसके अलावा हम अब जो बात कर रहे हैं इन सब की, idea is when you are talking about all these personalities, this is something which you need to know. And when I talk about डिग्री और कॉलेज, आपको ये ध्यान रखना है, जस्ट व्हेन अगर हम बात कर रहे हैं डिग्री और कॉलेज की, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार देखा है एमबीए, एमबीए की तो कोई वैल्यू नहीं है, एमबीए में तो ये होता है, एमबीए में वो होता है। पॉइंट इज, आप अगर अच्छे कॉलेज में जाएंगे, जिन कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, और अच्छा कॉलेज बहुत है हिंदुस्तान के अंदर, अच्छे खासे, मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा थोड़ी देर में। आप 100 150 के आसपास जो है अच्छे कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। और अच्छा कॉलेज क्या है? जो पहली चीज आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स दे, राइट, कि आपके पास वहां स्पेशलाइज्ड चीजें हों, आप वहां पर अपना नेटवर्किंग एंड कनेक्शन बना सके। हम कई बार बोलते हैं कॉलेज जितना पुराना हो, उसका एल्यूमिनाई बेस जितना पुराना हो। एल्यूमिनाई बेस इंपॉर्टेंट किस लिए है? बिकॉज अगर आगे जाके आपको कंपनीज बनानी है, आपको स्टार्टअप खोलने हैं, आपको फंड्स की जरूरत है, आपको अपने स्टार्टअप आइडिया के लिए बात करनी है, आपको इंटर्नशिप ढूंढनी है, आपको जॉब ढूंढनी है, कौन हेल्प करेगा? आपके पुराने कनेक्ट्स, आपके एल्यूमिनाइज, राइट। दीज आर द पीपल हु विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। Any program, any college which gives you a global perspective, anything which you have a continuous learning and adaptability, आप कई आयाम्स देखेंगे जो साथ साथ में सीएफए दे रहे हैं करिकुलम के, जो साथ साथ में एडवांस बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम दे रहे हैं। क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, रेपुटेशन होना चाहिए। जो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम प्यार लगा लेते हैं डिग्री से, एमबीए करेंगे,
राइट, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं। हम एमबीए, दो देखो, देर आर टू एक्सट्रीम ऑप्शंस। वन ऑप्शन वी टॉक अबाउट एमबीए करेंगे, फिर चाहे कहीं से भी कर लें। दूसरा आता है एमबीए करेंगे, आईआईएम अहमदाबाद से करेंगे, बट हमारी प्रोफाइल नहीं है। ये दोनों एक्सट्रीम ऑप्शन इज वेरी डिफिकल्ट। मेरा सजेशन ये है, वर्क ऑन योर परसेंटाइल, डू इट फ्रॉम अ कॉलेज, और वो कॉलेज आपके लिए अच्छा है जो आपकी ये चीजें पूरी करे, एस्पिरेशन पूरी करे। और दूसरा, वो कॉलेज जो आपके आज और आज के कल के अंदर डिफरेंस रखे। इन सब चीजों के ऊपर आप बात कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड फोकस ऑन डिग्री। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। और हम जब बात कर रहे हैं एमबीए के बारे में, ये हम बात नहीं कर रहे, लोग बोलते हैं इसके बारे में। ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये अक्रॉस इंडिया सबका पर्सपेक्टिव है, ग्लोबली सबका पर्सपेक्टिव है। इंडीड करके एक जॉब फाइंड करने का साइट है, उन्होंने बोला था फ्यूचर किसके पास है? जिनके पास फाइनेंस है, जिनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोगों के अंदर फ्यूचर के अंदर डिग्री बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसका चीज आपको प्लेसमेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। आप अगर देखेंगे, आई एम कैलकाटा, आई एम काशीपुर, आई एम अहमदाबाद, आई एम जम्मू, इनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से न्यूज देखिए। सो पॉइंट इज, एमबीए बेकार नहीं है, अच्छा कॉलेज से करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, थोड़ा और स्टेटस देखेंगे। आगे अगर आप देखेंगे, व्हेन द टाइम्स वर टफ, व्हेन द कोविड वाज देयर, तब मैंने निकाला था कि कोविड के टाइम पे भी वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट प्लेसमेंट सेट अ 5 ईयर हाई। और उसी का नतीजा है कि पिछले साल 3 लाख स्टूडेंट्स ने, 3.3 लाख स्टूडेंट्स ने एमबीए कैट फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, और 2.8 लाख स्टूडेंट्स ने कम से कम कैट का फॉर्म फिल किया था, बिकॉज थिंग्स आर इंक्रीजिंग। सो मेक श्योर वट एवर यू आर डूइंग, और एज ऑफ नाउ थिंग्स आर वेरी ग्रेट, because the kind of make in India campaign we are talking about, the kind of investments coming in India, the kind of we are talking about hosting India 2036 Olympics, all these things will work in our favor for sure. We are the most stabilized economy at this point of time. Even China is facing the turmoil, US is facing the turmoil, UK is facing the turmoil, Canada we have already seen, Sri Lanka we've seen, Bangladesh, Pakistan, हर जगह हालत खराब है। We are the most stabilized country, right? Over to you, Ankur sir. तो गाइस यहाँ पे जो ऑलवेज जो अपन समझने की कोशिश करते हैं, रिसेंटली आपने 2 दिन पहले के जो न्यूज देखा होगा। गाइस न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप नहीं पढ़ रहे हो तो रीड करना चालू कर देना। अभी जो यूजी के बाद जो आईपी मेट के एग्जाम्स आते हैं, जो बेसिकली मैनेजमेंट एग्जाम्स है, जो आईआईएम में जाने के लिए, आईआईएम इंदौर एंड रोहतक एंड सारे एग्जाम कंडक्ट कॉलेजेस कंडक्ट करते हैं। वहां पे आपने देखे होंगे, तो इस बार फर्स्ट टाइम फॉरेन के स्टूडेंट ने भी एडमिशन वहां पे लिया हुआ है। मतलब कि वहां पे कहीं ना कहीं अब जो सर बात कर रहे हैं कि इंडिया जिस लेवल पे जा रहे हैं, जिस लीग के अंदर जा रहे हैं, जिस हिसाब से अपन ग्रोथ कर रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं स्कोप है कि अपन आगे मैनेजमेंट की तो जरूरत पड़ेगी। चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल लाइन के अंदर हो, आप कोई भी एक्स एन नंबर ऑफ द स्ट्रीम्स के अंदर आप हो, जहां पे आपको टॉप पोजीशन के अंदर पहुंचना होगा, कोई भी खुद का बिजनेस रन करना होगा, आपको सीईओ बनना होगा, एचओडी बनना होगा, वो कोई भी टॉप पोजीशन पे काम करना है, मेक श्योर कीप इन द माइंड कि आपको एमबीए की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। जो बीबी किंग का जो स्टेटमेंट है, द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट द लर्निंग स्किल नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। मतलब आप जिंदगी में एक बार आप जो स्किल डेवलप करेंगे, वो जिंदगी में आप कभी भी कोई आपसे चुरा नहीं पाएंगे, राइट। एंड मैनेजमेंट की जो अपन बात करें, तो वहां पे एचआर, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज द इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज द इम्पोर्टेंट, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, राइट। कहीं पे भी मेक श्योर कि आपके जो भी डाउट्स है आप उसको नोट डाउन करके रखना। प्रशांत सर, ये स्लाइड के ऊपर आप प्लीज, आपके लिए स्पेशली मैंने रखा है कि आपका क्या इसके अंदर बोलना है। देखिए, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर दिया है कि मिथ रिलेटेड टू एमबीए, राइट, कि कई मिथ हैं जो हमारे को ध्यान रखने चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज, कैट मींस आई एम एडमिशंस। ठीक है, कि कैट का मतलब ओनली आईएम्स। कई बच्चे अपनी इस ड्रीम के लिए पूरा नहीं कर पाते हैं। रीजन इज कि नहीं सर, हमारा आईएम में नहीं होगा तो हम जाएंगे नहीं, राइट। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी बैड। मैं आपको थोड़ी देर में पूरा लिस्ट अंकुर सर आपको देंगे, राइट, कि क्या क्या कॉलेजेस हो सकते हैं और उन कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट प्लेसमेंट किस तरीके के हैं। गुड मैथ्स स्किल्स आर मस्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ स्किल्स मस्ट नहीं है, बट गुड मैथ स्किल्स आर मस्ट। बिकॉज मैंने कई बार स्टूडेंट को देखा, सर वो तो इंजीनियर है वो चला जाएगा, सर वो तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है वो चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ओनली थिंग इज दैट, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करूं, मैथ्स का फोबिया ना होना इज मस्ट। अगर आपको मैथ्स का फोबिया है ना, तो वो मैं शायद दूर नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आपका मैथ्स फोबिया नहीं, और अगर आपको लग रहा है मैंने ब्रेक वगैरह किया है और मेरे को कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो यार इसमें मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फोबिया गुड सर, मैथ। फोबिया के अंदर जो आगे जो मैंने स्लाइड स्पेसिफिकली जो क्वांट के लिए बनाई है, तो आई एम श्योर कि सर सारे स्टूडेंट के फोबिया निकल जाएगा, दैट इज फॉर चलो, वेरी गुड। इंजीनियर्स कैन क्रैक कैट इजीली। हालत बहुत खराब है इंजीनियर्स के लिए। तो जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ये तो हमने इंजीनियर्स के लिए छोड़ देना चाहिए, देखो दो तरीके की चीजें हैं। सो पहला, इंजीनियर्स को कॉल आना मुश्किल हो जाता है।
बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कॉल आना इजी होता है। अगर कॉल आ गया तो कन्वर्जन थोड़ा इंजीनियर का इजी होता है। तो ऐसा नहीं कि इंजीनियर ही इजी कर पाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेशर स्टैंड अ लेसर चांस। द करंट IIM अहमदाबाद बैच, जो कि डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा पॉइंट्स देता है, द करंट बैच हैज somewhere around 38% of the students who are freshers. So don't say that fresher has a lesser chance. वर्क एक्सपीरियंस होना एडवांटेज है, मैं मानता हूं। ना होना डिसएडवांटेज नहीं है, प्लीज ध्यान रखिए। इट इज अ वेटेड स्कोर वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। एंड द लास्ट, पुराने कर्मों का हिसाब। देखिए गाइस, मैं बहुत ही एक सिंपल सी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली चीज, 10th के स्कोर का आप कुछ कर सकते हैं क्या? यस और नो, क्विकली इन द चैट बॉक्स। कैन यू डू एनीथिंग ऑन 10th स्कोर? फटाफट फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कर सकते हैं कुछ? नहीं कर सकते। आप 12th के स्कोर का कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन आपका चल रहा है फाइनल ईयर में, थोड़ा बहुत वही मैनेज कर सकते हैं, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। जेंडर डाइवर्सिटी मत सोचना कुछ चेंज वेंज कराने का, पता लगा चेंज कराना शुरू कर दिया। हाँ, इंडिया के अंदर अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। ओनली थिंग विच इज देयर इन योर कंट्रोल इज परसेंटाइल, उसके ऊपर फोकस करो। सो प्लीज स्टॉप दिस मिथ। MBA करना है, करूंगा या करूंगी, एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, राइट। अंकुर सर, ओवर टू यू। यस, तो सर ने जो यहाँ पे जो बोला कि जो सर ने स्टैटिस्टिक्स के साथ जो बात किया, आई विल शेयर विथ यू गाइस कि जहाँ पे पूरा जो एक्सपीरियंस है लेके एवरीथिंग, जो IIM, जो टॉप IIM से, जो अच्छे कॉलेजेस है, जो एडमिशन देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मैंने इंस्टाग्राम के अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है। तो आप इनकेस आपने जो फॉलो नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर कि आप फॉलो कर लेना, जहाँ पे हमने सारी डिटेल्स ऑलरेडी डाला हुआ है। जो कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, मोर देन 100 कॉलेज, राइट, मोर देन 100 कॉलेजेस जो है, जिनके अंदर मैंने लिस्ट लास्ट सेशन भी लिया हुआ था, जिसके अंदर भी बोला हुआ था कि 8 लाख से 8 लाख से 10 लाख रुपए से ज्यादा का पैकेज आपको वहां पे मिलता है, राइट। तो जो कॉलेजेस के अंदर आप जा सकते हो, चाहे आपका 10th 12th कितना भी खराब हो, वहां पे आप जा सकते हो, राइट। सो इसके अंदर भी अपन डिटेल में बात करेंगे। दीज आर द कॉलेजेस, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो कॉलेज, मतलब दीज आर द फर्स्ट शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस, जो सबके सपने की ड्रीम्स कॉलेजेस होती है, जहाँ पे IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, IIM इंदौर, कोझिकोड, रांची, त्रिची, ये जो कॉलेजेस है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स दिया हुआ है कि कौन से पैरामीटर्स के बेस पे आपको वहां पे एडमिशन मिलते हैं, और उनके लिए आपको So the idea क्या क्या। is what Ankur sir is trying to show in this particular slide is, if you see, you know, the weightage, right? Though it's a slightly old slide, but if you see the weightage, अब अगर मान लो किसी बच्चे का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10th 12th ग्रेजुएशन के अंदर स्कोर नहीं है, और बच्चे ने ईगो पे ले रखा है मुझे IIM इंदौर में ही जाना है। अब तो ईगो पे कितना ही ले लो भैया, नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, बिकॉज IIM इंदौर के अंदर अगर आप देखेंगे, IIM इंदौर के अंदर टेस्ट स्कोर का वेटेज इज ओनली 20%। तो क्यों फालतू इतना कर रहे हो? बट इफ यू सी IIM अहमदाबाद, अच्छा खासा वेटेज है आपका टेस्ट स्कोर का, कैट के स्कोर का। IIM बैंगलोर देखोगे, उसमें वर्क इसके एक्सपीरियंस अंदर ज्यादा इसके वेटेज है। अंदर मेरा प्रश्न एक और भी इसके अंदर परसेप्शन होगा कि IIM इंदौर की जो अपन बात करें, तो इफ यू हैव वेरी गुड स्कोर 90 या 90+ परसेंटाइल, जो आप बिल्कुल 10th एंड जाना 12th के चाहिए। अंदर है, आपको IIM इंदौर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। आप IIM इंदौर के अंदर आप टारगेट कर सकते हो, राइट। सो अकॉर्डिंगली जो भी अपनी प्रोफाइल है, जो 10th 12th के जो स्कोर है, कई स्टूडेंट लगते हैं कि सर मेरे पास मेरे गांव के अंदर बहुत अच्छी कबड्डी खेलता था, उसका सर्टिफिकेट है, भाई वो कहीं पे काम नहीं आने वाला, राइट। सो मेक श्योर कि हमारे पास स्टेट लेवल का है तो नेशनल लेवल का कोई जो सर्टिफिकेट्स होंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ होंगे, तो उसका डेफिनेटली अपन को कहीं ना कहीं कुछ वेटेज मिलेगा। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोफाइल बिल्डिंग या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग जो यूट्यूब एंड डिफरेंट डिफरेंट जो गूगल अंकल के अंदर चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बहुत लिमिटेड कॉलेजेस ऐसी है जो आपकी प्रोफाइल की चिंता करते हैं। बाकी किसी को भी आपकी प्रोफाइल की कोई चिंता नहीं है, जो अपन सेपरेटली बात करेंगे। आई थिंक मैं 10 कॉलेजेस का नाम हटा दूं, जिसके अंदर 7 ब्लैकिस्ट जो कॉलेज अपन बोलते हैं, बेंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, कोझिकोड, इंदौर, शिलोंग, वो सारी कॉलेज में हटा दूं। और उसके अलावा जो अपन MDI गुड़गांव, FMS दिल्ली ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया है कि वो अभी प्रोफाइल बेस पे एडमिशन देते हैं, स्पिजन मुंबई को मैं रिमूव कर दूं, तो इसके अलावा कोई भी कॉलेजेस ऐसी नहीं है जो आपकी प्रोफाइल की चिंता करेंगे। दे रिक्वायर कैट स्कोर।
राइट। सो आई एम श्योर कि एक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राइट, ये जो आप यहाँ पे और भी मैंने जो कॉलेजेस लाए हुए आप देख सकते हो, एक्सेलरा, एफएमएस, एमडी गुड़गांव, ये सारे जो कॉलेजेस है यहाँ पे आपको इस अकॉर्डिंगली आपको मिलेंगे। राइट, इसके अलावा भी जो आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट है। आई विल शेयर इट अगेन, आपको चाहिए तो मैं लास्ट में मेरा नंबर दूंगा, आप मेरे साथ कनेक्ट करके वापस वो मेरे से ले लेना है पीडीएफ, जिसके अंदर पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है कि कौन सी कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। राइट, तो दिस इज ऑल द क्लस्टर। राइट, जो प्रोफाइल की अपन बात कर रहे थे, मैं क्विकली उसके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। जो सर ने बताया हुआ था एकेडमिक्स, 10th 12th ग्रेजुएशन। गाइस एक चीज याद रखना कि यहाँ पे एक प्रोफाइल की अपन चाहे कितना भी डिस्कशन कर ले, जो सर ने बताया बहुत स्पेसिफिकली, बहुत क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में अब कुछ नहीं है। मैं आपको बोलूं कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करो, भाई अब अपनी उम्र नहीं रही कि सर अपन ओलंपिक में जाकर भाला फेंके। राइट, वो हालत पे अभी अपन नहीं है। सो मेक श्योर आपकी जो भी प्रोफाइल बन गई है वो बन गई है। आपके कंट्रोल के अंदर एक ही चीज है, जो आप कैट की एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, दैट्स इट। उसके अलावा आपके कंट्रोल में कोई नहीं। आज कई बार स्टूडेंट मेरे पास आते हैं जो डिस्कस करते हैं कि सर हमको एमबीए के अंदर एचआर के अंदर स्पेसिफिकेशन करना चाहिए या फाइनेंस के अंदर करना चाहिए। आई एम श्योर कि आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपके दिल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे। राइट, लेकिन मैं आपको बता दूं, उन स्टूडेंट को मैं एक ही सेंटेंस में आंसर देता हूं कि भाई तू पहले कैट के एग्जाम में अच्छा स्कोर लेके आ, आपकी एग्जाम में 99.99 परसेंटाइल आ जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्त, कॉलेज ढूंढती हुई आपको लेने आएंगे, आपके घर तक पहुंच जाएंगे। आप कैट में रिजल्ट लेके आइए, दैट्स इट, बाकी सारी चिंता छोड़ दीजिए। बिकॉज 10th 12th का रिजल्ट आप चेंज कर नहीं सकते। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 12 मंथ से नीचे का एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं होता है, और 4 साल से 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है तो भी आपको डिफिकल्टी है। उसके बीच में समथिंग जो आपको फायदा करेगा। लेकिन मैं आपको दूसरी बात एक बता दूं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना नुकसान नहीं है। जो सर ने बताया 37 से 38% आज भी अच्छी टॉप आईएम के अंदर, एबीसी की मैं बात करूं, वहां पे फ्रेशर्स को एडमिशन मिलते हैं एंड वो स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे हैं। सो मेक श्योर के सारी चीजों के पीछे मत भागना। डाइवर्सिटी की बात करूं मैं, एकेडमिक डाइवर्सिटी की, जेंडर डाइवर्सिटी का तो ऑलरेडी प्रशांत ने बोल दिया, तो उस पर कुछ मैं कमेंट अब नहीं मारना चाहता हूं। लेकिन मैं एकेडमिक की बात करूं और मैं आपको बोलूं कि मेडिकल लाइन वालों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो क्या मैं लिबरल स्टडी छोड़ के मेडिकल पढ़ने बैठ जाऊंगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। सो ये सारी चिंता छोड़ दीजिए। एकेडमिक करिकुलम की जो मैंने बात किया, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो कंपटीशन नहीं है, तो अब अपने पास उम्र नहीं है वो सब करने का। मोहित, आपका गैप ईयर कितना है बेटा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, मैं आपको खाली बता दूं कि हमारे पास भी जो स्टूडेंट आते हैं उसका जब जीडीपीआई के अंदर हम प्रिपरेशन कराते हैं, जो हमारा फोर्ट है, जो वी कैन से कि भाई 10 11 साल के जो एक्सपीरियंस के अंदर हमने जो स्टूडेंट को प्रिपेयर किया है, जो टॉप आईएम के तक पहुंचा है बच्चों को, तो वहां पे हम जो करते हैं कि आपके गैप ईयर को जस्टिफाई करवा सकते हैं। उसके अलावा कोई स्कोप नहीं, वो भी डिपेंड है कि कितने वर्क आपका गैप ईयर है, एवरीथिंग। राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोहित अपन उसको बात करेंगे सेपरेटली। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर आ जाते हैं, हाउ टू क्रैक कैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। राइट गाइस, बाकी सारी चीज आई थिंक आपको पता होगी, या तो नहीं पता होगी तो बहुत आपको अभी पता चल गया होगा। लेकिन अब जो मैं काम की बात करने जा रहा हूं, दैट इज द एकेडमिकली मैं बात करने जा रहा हूं। अब यहाँ पे जो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि सर कैट एग्जाम को, सर मान लिया आपकी सारी बात तो हमने दिल पे ले लिया कि अब कैट के एग्जाम के अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, तो कैट के एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे उसके बारे में जब अपन बात करेंगे। राइट, सो एवरीवन, सो द फर्स्ट स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़े कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। राइट, लेट्स चेक जीके कि भाई आपका क्वेश्चन, आपके पास क्या जनरल नॉलेज है। एवरीवन चैट बॉक्स के अंदर आपका आंसर चाहिए। जितने भी स्टूडेंट है 100+, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके आंसर चैट बॉक्स के अंदर आएंगे। राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर फॉर द कैट 2023? आई थिंक प्रशांत सर ने मेरे क्वेश्चन को रिवील कर दिया था, थोड़े टाइम पहले आंसर दे दिया था, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर राइट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। गाइस चैट बॉक्स को एकदम आग लगाओ, धुआं निकलना चाहिए दोस्त। एवरीवन, एवरीवन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर कैट 2023? ओ 8 लाख, तोमर भाई बहुत ज्यादा हो गया दोस्त, थोड़ा आराम से। चलो, ओके, सो आई थिंक मेजरली आंसर आया है 3.3 लाख। राइट, सो 3.5 लाख के आसपास बच्चों ने कैट की एग्जाम लिखी थी। क्या प्रशांत सर आप मानते हो 3.5 लाख बच्चों ने कैट के एग्जाम के लिए अपियर किया होगा? व्हाट इज योर आंसर? मेरे हिसाब से आंसर है 30,000। सर बच्चे सोचेंगे आप पागल तो नहीं हो गए हो? 30,000, 30,000, नॉट मोर देन दैट। यस गाइस, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप जब बात करते हैं, देखो मैंने आपको पहली चीज बोला, 3.3 लाख स्टूडेंट्स रफली, they appear, they make sure they registered for the CAT exam.
2.85 के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, एग्जाम दिया है। इसका उदाहरण मैं आपको थोड़ी देर में, और मैं हर क्लास में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन में देता हूं। जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं ना, जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं ना, तो क्लास के अंदर होते हैं लेट्स से 70 स्टूडेंट्स, ठीक है। और जब क्लास, वेरी गुड राहुल, जब क्लास खत्म होती है ना, तो क्लास के अंदर होते हैं 40 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स। क्यों? वही कंपटीशन, वही कंपटीशन है। लोग स्टार्ट तो पहले दिन से करते हैं, ये कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। लास्ट तक जो प्रोसेस के बाद जिंदा रहता है, वो तुम्हारा असली कंपटीशन है। और वो कंपटीशन वाले सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 हजार स्टूडेंट्स हैं, जो आपका रियल कंपटीशन है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि बाकी लोग हथियार गिर चुके हैं, मॉक नहीं दे रहे हैं, कभी कभार आते हैं, भर दिया है इसलिए कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कॉलेज की स्टडीज, या फिर हम लोगों को सब व्हाटसोएवर का कोई भी रीजन हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूं। बट मेरे पास असली कंपटीशन है 30 से 35 हजार स्टूडेंट। यस अंकुर सर। इसके अंदर जो मेजरली मैं बोलता हूँ कि भाई जय माता जी करने से कोई अपन कैट के एग्जाम को पास नहीं कर सकता, राइट? और पेंसिल आती है ना एबीसीडी ऑप्शन वाली, अपन घुमाते रहते हैं और वहां जाके अपन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो वो कैटर्स हमारे लिए कंपटीशन है ही नहीं। गाइज मैं आपको बोलता हूँ, मैं तो 30,000 के भी खिलाफ हूँ, जो प्रशांत सर ने बोला, ठीक है अपन मना नहीं करते, लेकिन मैं तो बोलूंगा रियल कंपटीशन जब कैट की रियल एग्जाम चल रही होती है ना, तब भी चालू होती है। सर वीआरसी का सेक्शन बहुत टफ आ गया। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिसके अंदर अभी भी दम होगा कि सर वीआरसी का सेक्शन पिटने के बाद भी एलआरडीए के अंदर वही फ्रेश माइंड से अप्रोच लगा सकते हैं। गाइस आधी जनता वहां पे उड़ जाती है, आधी जनता। मैं 30,000 की जो सर बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 10,000 बच्चे वीआरसी का सेक्शन जो टफ आ गया, वो बच्चे के अंदर एबिलिटी नहीं होगी कि अभी भी मैनेज कर सकते हैं कि एलआरडीए को सेक्शन को उतने फ्रेश माइंड से करें। और एलआरडीए का सेक्शन पिट गया फॉर एग्जांपल, और उसके बाद कॉन्ट आया, तो भाई कॉन्ट के अंदर क्या वही फ्रेशनेस से आप पेपर लिख सकते हो कि नहीं? रियल जब एग्जाम लेके बाहर निकलता है ना, तब 10 से 15 हजार बच्चे बाहर निकलते हैं जो इज्जत से ईगो के साथ बोल सकते हैं कि दोस्त मेरा रिजल्ट आएगा। दैट इज अ कॉम्पिटिशन। आर यू गेटिंग मी? राइट। सो आपको ये भी एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। खाली पढ़ने से, खाली यूट्यूब देखने से, खाली मोटिवेशनल वीडियो सुनने से दोस्त काम नहीं बनेगा। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है दोस्त, जान लगा दीजिए, मेहनत करिए, दैट्स इट। हम कई बार देखते हैं, मूवी देखते होते हैं, हम किसी को देखते हैं, हमको लगता है या तो हमारा कजिन कभी गलती से घर पे आ जाते 2 दिन रुकने के लिए, उसका बॉडी और बाइसेप देख के हमको लगता है कि भाई मुझे भी सुबह उठ के जिम जाना चाहिए, अपन भी पैसा भर देते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद अपन थक जाते हैं। दोस्त ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमको मैनेज करना पड़ेगा, एवरीथिंग सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जब जान लगाएंगे ना दोस्त, और वो एवरी एक्सपेक्ट पे अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर को कैसे टैकल करना है, प्रेशर को कैसे सहना है, उसके बारे में भी आगे अपन बात करेंगे। तो ये सारी चीज एक क्रैक द कैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो मैं बात करूंगा, नॉट ओनली एकेडमिक, इसके अलावा भी जो पॉइंट्स है जिसको अपन को कंसिडर करना चाहिए, राइट? नाउ माय अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, कितने क्वेश्चंस कैट एग्जाम के अंदर होता है? आई एम श्योर कि बहुत इजी क्वेश्चन है। आई एम एक्सपेक्टिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, बिकॉज दिस इज द बेसिक्स, राइट? इसे यही पता नहीं होगा सर मैं कहाँ खेलने वाला हूँ, वही नहीं पता है, तो फिर तो सर बात ही क्या है? Right, so very good. I think 66 questions, and the most important question, जो my third question is, how many score is required to get 99 percentile? 99 percentile लाने के लिए आपको कितना स्कोर जरूरत पड़ेगी guys? Out of these 66 questions, या out of 198 marks? Everyone, I need answer from all of you. Sir, are you getting the answer? नो सर। गाइस आंसर चाहिए भाई। 198 मार्क्स में से कितना मार्क्स लाने पे आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाएंगे? सो गाइस योर आंसर इज, सॉरी, यहाँ पे एक पेपर पैटर्न की अपन बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बोला। दिस इज द 66 क्वेश्चन, जिसका बाइफर्केशन है 24 क्वेश्चन इन वीआरसी, 20 क्वेश्चन इन एलआरडीए, एंड 22 क्वेश्चन इन कॉन्ट सेक्शन। हर किसी के अंदर आपको 40 मिनट्स मिलेगी, राइट? आई एम श्योर कि आपको पता होगा। एंड दिस इज द लास्ट 6 ईयर एनालिसिस गाइस, यू कैन सी द स्क्रीन। आप इस स्क्रीन को अपने आंखों में जमा लीजिए कि कितना मार्क्स लाने से आपको 99 परसेंटाइल आ सकता है। आप देख लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज द मार्क्स जो आपको लाना होगा। एंड मैं 80 परसेंटाइल की बात करूं, 34, तो लगभग अपन 12 क्वेश्चन करेक्ट करने पे, राइट, 12 क्वेश्चन करेक्ट करने पे, या तो 11 क्वेश्चन करेक्ट, टोटल ओवरऑल बात करो 66 क्वेश्चन में से हम समवेयर 80 प्लस परसेंटाइल पे पहुंच जाएंगे। इस बार कैट 2023 की मैं बात करूं तो एक मार्क करेक्ट करने पे 50 परसेंटाइल था, और 0 मार्क्स पे 30 परसेंटाइल था।
So guys, I think this slide becomes very, very important for you when you're talking about strategy. This is the first slide from which your strategy starts. I'll give you an example, right? So let's say if a student comes to me and says, so if I talk about, let's say the top IIMs, we are talking about IIM Ahmedabad, right? So IIM Ahmedabad, their eligibility criteria to be eligible for them to get a call, right? You should have a 80, 80, 80 in all the three sections put together, right? 80, 80, 80 in all the three sections put together. And if let's say some students come to, some student will say, कि सर मेरा ना ओवरऑल सब कुछ अच्छा है बट वर्बल के अंदर हालत खराब है. तो भैया अगर वर्बल के अंदर हालत खराब है, मैं आई डोंट नो इफ लेट्स से वी कैन शो यू द सेक्शन वाइज परसेंटाइल मार्क्स एज वेल टू यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो लेट्स से अगर मुझे वीआरसी के अंदर 80 परसेंटाइल के आसपास चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, आई विल व्हाट मैक्स आई कैन डू इज 8 to 9 क्वेश्चंस, व्हिच मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 24 to 28 ऑड मार्क्स. सो एटलीस्ट मेरा वो वीआरसी का 80 परसेंटाइल वाला चीज क्रैक हो जाता है, राइट? दीज आर ओवरऑल मार्क्स, राइट? दीज आर ओवरऑल मार्क्स. और अगर आप देखोगे वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से 95 के अंदर 54 ऑड मार्क्स पुट टुगेदर, राइट? सो तुम्हें ये देखना है कि मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरा मैथ्स वीक, क्वांट्स वीक है, या एलआरडीआई वीक है, या वर्बल वीक है, where I can maximize and where I can at least get the bare minimum score to hit the desired percentile. So this is something which you need to understand. So typically a 10, 10, 10 questions in all the three sections, and I'm telling you, your job is done. 10, 10, 10 questions out of three in the three sets, which means 30 odd questions, your job is absolutely done, to be honest with you, because that's where you can see 99.5 percentile at 85 marks in CAT 2023. Right? Over to you, Ankur sir. तो यहाँ पे गाइज आपको जो समझने की जरूरत होगी, अगेन जो मैंने बोला, आपको यहाँ पे रैंडम कोई क्वेश्चन चूज नहीं करना है. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन चूज करना है, क्या करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ देना है, कैसे अप्रोच लगाना है. बिकॉज देखो इसके अंदर एक ही चीज आपको ध्यान रखना है दोस्त, गलती नहीं करनी है. बस आप रैंडमली टिक करना चालू कर दिया दोस्त, मर जाएंगे. मैं जो आपको बता रहा हूँ, सर ने बोला 10-10 क्वेश्चन, मैं तो बोलूंगा भाई पहले अपना टारगेट होना चाहिए 90%. देखो मैं आपको बोलता हूँ 90, जैसे आपके स्कोर कार्ड के ऊपर 90 प्लस समथिंग आ गया, मतलब दोस्त आप हिंदुस्तान की 50 कॉलेजेस को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे जो 10 लाख से ज्यादा पैकेज देती है, या तो जो अच्छी कॉलेज है. राइट, जैसे आप 89 पे आ गए दोस्त, आधी दुनिया तो अपने हाथ से निकल जाएगी. सो मेक श्योर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि नेक्स्ट मॉक लिखेंगे या नेक्स्ट प्रिपरेशन जो हम करेंगे उसके अंदर हमारे पास जो मिनिमम हमारे जो क्वेश्चन होने चाहिए कि 90% लाने के लिए 46 मार्क्स हमको लाने होंगे ओवरऑल. मैं लगभग बात कर रहा हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर लेंगे, तो 6 क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर लेंगे इजिली. वी कैन रीच एट 90% अकॉर्डिंग टू दिस. ये लास्ट ईयर का एनालिसिस है, ये कोई जो मुझे अच्छा लग रहा है वैसा मैंने नहीं बनाया. राइट, मेक श्योर कि दिस इज द फैक्ट्स जो मैं लेके आया हूं कि इतना क्वेश्चन करने पे आप यहां तक पहुंच जाएंगे. मेक श्योर आपको गलती नहीं करनी है. राइट, थोड़ा आगे बढ़ते मैं वीआरसी की बात करता हूं. राइट, जो वीआरसी की बात करता हूं तो यहाँ पे मैंने पिछले 4 इयर्स का एनालिसिस किया. आई थिंक प्रशांत सर इसके अंदर ज्यादा बात करेंगे. राइट, तो वीआरसी की जो मैं बात करूं तो लास्ट 4 इयर्स के अंदर क्वेश्चंस कहां से आए. देखो अब ये स्लाइड दिखाने का मकसद ये है कि आपको जो 7 या 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है वीआरसी सेक्शन के अंदर, तो आपको कहां से करना है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 16 क्वेश्चन होंगे दोस्त. 65% से ज्यादा पेपर आरसी से बना हुआ है. वीए को मार दो गोली, हमारे को ध्यान ही नहीं देना है. या तो मतलब नहीं प्रशांत नहीं सर. नहीं, गोली नहीं मारेंगे, गोली नहीं मारेंगे अंकुर सर, ऐसे मत करो यार, गोली नहीं मारेंगे. ओके गाइस, स्मिथ ने मेरे से पूछा था कि वर्बल का एनालिसिस क्या होगा, कैसे होगा. तो स्मिथ, आई थिंक इफ यू आर देयर, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन स्ट्रेटेजाइजिंग योर प्रिपरेशन. ठीक है, let's talk about reading comprehension, because I can throw some light, because I do give CAT every year. I'm a 99 percentiler in CAT, and every year I give CAT examination, and this is what my forte is all about. So if I talk about reading comprehension, right, आ रहा हूँ जूम यूजर, अगर मैं इसकी बात करूँ मुझे पढ़ना क्या है, अगर तुम यहाँ थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देखोगे, थोड़ा सा सब टॉपिक्स देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, सो मेजोरिटी यू विल सी पैसेजेस फ्रॉम फिलोसफी फॉर श्योर. राइट, तुम्हें फिलोसफी, एनवायरमेंट, और तुम एनालिसिस देखो कैट 2023 एनवायरमेंट के 4 एक एक पैसेज, 2021 एक पैसेज, 2022 एक पैसेज, 2023 2 पैसेज. एनवायरमेंट आएगा ही आएगा. ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर तुम और कॉमन वो देखोगे, यू विल गेट लेट्स से समथिंग रिलेटेड टू फिलोसफी. फिलोसफी बहुत प्रीडोमिनेंट तुम्हारे को मिलेगा ही मिलेगा. साइकोलॉजी जैसे तुम्हारे को हर उस पर मिलेगा. सो द पॉइंट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इन सब जॉनराज में से पैसेजेस पढ़ने हैं और इन सब जॉनराज में से पैसेज को सॉल्व करना है. एक चीज मैं और बोल देता हूँ सबके लिए, मेरी हर क्लास में जो स्टूडेंट मेरे साथ एनरोल्ड हैं, जो मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं क्लासेस के अंदर, मैं एक चीज जो बोलता हूँ, भैया डेवलप दैट एफिनिटी टुवर्ड्स रीडिंग फर्स्ट. मैंने कई बार स्टूडेंट को देखा, सर बुक कौन सी अच्छी है, एंड हम लेके आते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक, हम लेके आते हैं लेट्स से अरुण शर्मा बुक, हम सारी बुक लेके आना शुरू करते हैं. करते क्या है,
पैसेज सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो गलत हुआ पीछे से सॉल्यूशन देख लिया, अच्छा ऐसे करना था, अरे ये तो कोई भी कर लेगा यार। एफिनिटी डेवलप करो, पहले पहले प्यार बनाओ रीडिंग से। जब प्यार बनाओगे रीडिंग से तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस बात का ध्यान रखना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तुम जितनी भी क्लासेस मैं करवा रहा हूं, उस क्लासेस के अंदर तुम सिर्फ उस क्लास के अंदर मेरी अप्रोच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कर लो, मैं बता रहा हूं तुम्हारा अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बट मैं तुमसे रीडिंग नहीं करवा पाऊंगा उन क्लासेस के अंदर, वो तुम करके आओ। और क्लासेस में तुम मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं आपको हर क्वेश्चन का लॉजिक बता दूंगा कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज छुपी हुई है, और मैं बता रहा हूँ पेपर सेटर उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। लोग बोलते हैं कैट अनप्रिडिक्टेबल है। कैसा अनप्रिडिक्टेबिलिटी? कैट 23 से लेकर 20 तक सारे चीजें आपके पास हैं, इसके अलावा कैट ने आज तक कुछ पूछा ही नहीं है। ये 4 क्वेश्चंस के अलावा कैट ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ पूछा ही नहीं है। सो टू हेल विद दिस स्टेटमेंट सेइंग दैट कैट इज अनप्रिडिक्टेबल, इट इज प्रिडिक्टेबल, बट वी नीड टू, हमें तलवार चलानी पड़ेगी सोच के, ये बात का आपको ध्यान रखना है। सो मेक श्योर गेट इनटू दिस एंड स्टार्ट सॉल्विंग। यस अंकुर सर, ओवर टू यू। सर बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पे भी कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं यार, क्लास में भी कई बार अपन डिस्कस करते हैं, मैं ऑनलाइन जो फ्री सेशन लेता हूँ उसमें भी बच्चे के क्वेश्चन रहता है, काउंसलिंग में भी कई बार बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि सर आरसी के अंदर जो एमसीक्यू जो 4 क्वेश्चन होता है पर पैसेज, राइट, उनके अंदर भी सर कोई रीडिंग इज द ओनली वे कि जहां से स्टूडेंट समझ सकते हैं, या उसके अंदर भी कोई शॉर्टकट या कुछ ट्रिक होती है यार कि जहाँ रीडिंग, कर रीडिंग सकते हो? पैसेज पढ़ने के लिए अंकुर सर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन, राइट, तो क्वेश्चंस के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शंस, ऑप्शंस को बिल्कुल कंसेप्चुलाइज किया जा सकता है, बिकॉज पेपर सेटर किसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से आगे जाता है। ठीक है। अगर पेपर सेटर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑप्शंस देगा तो बहुत इजी हो जाता है एलिमिनेट करने के लिए। हमें सिर्फ ये समझना जरूरी है क्वेश्चन कहां से पूछा गया और आंसर कहां से निकलना है। इट्स अ वेरी डिफरेंट दुनिया ऑल टुगेदर, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अगर इनमें से कोई स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस के अंदर है तो आपको रिलेट करके बता पाएंगे, जब मैं स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ, कि मेरे को आइडिया समझना जरूरी है, और आइडिया कहाँ मिलता है वो हम क्लास में जरूर बात कर सकते हैं। और उसके लिए रीडिंग करना जरूरी है। रीडिंग कहाँ से करना जरूरी है, दैट एवरीथिंग आई कैन शेयर विद यू लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ग्रेट। सो क्या हो गया, स्क्रीन चल नहीं दिया भाई? हाँ। सो दिस इज द डेटा इंटरप्रेशन लॉजिकल रीजनिंग, राइट, जो अपन डीएलआर की बात करते हैं, राइट, तो आप देख सकते हैं सिमिलरली जैसे वीआरसी की बात किया, आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो। एलआरडीए के अंदर जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, 2 करेक्ट सेट, टोटल आपको 4 सेट आएंगे, पर सेट आपको 5 क्वेश्चन दिया होगा, टोटल 20 क्वेश्चन आपको आएंगे। आपने 2 सेट कर लिया दोस्त, आप दुनिया जीत लेंगे। मतलब 99 परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। मेक श्योर यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपको प्रॉब्लम आएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे कौन सा सेट छोड़ देना है। आपने गलत सेट के अंदर आप घुस गए तो भाई वो अभिमन्यु का चक्रव्यूह है दोस्त, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आधा आधा चारों सेट करने से अपन फंसते जाएंगे, राइट। सो मेक श्योर आपको यहाँ पे देखना होगा कि आप कहाँ पे स्ट्रांग हो, कहाँ पे वीक हो। आप देख सकते हो यहाँ पे आइटम्स एंड अरेंजमेंट, मैंने ये जो यहाँ पे सीक्वेंस लगाया हुआ है वो मैंने शॉर्टिंग किया हुआ है कि जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने टॉप पे रखा हुआ है, यू कैन सी बाय द वे, राइट। चारों चार ईयर का आप टोटल मारेंगे तो यू अंडरस्टैंड कि आइटम्स एंड अरेंजमेंट के अंदर से आज तक सबसे ज्यादा सेट्स आए हुए हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में से सेट आए हुए, बार ग्राफ, वेन डायग्राम्स, ये जो सारी चीजें, स्कैटर डायग्राम, उसके अंदर से आपके क्वेश्चंस आए हुए, टेबल। गाइस मैं आपको बोल रहा हूं कि आप टुडे, आज से आप कैट के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, आपको आंख बंद करके ब्लाइंडली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है। आपको ऊपर से 4 पॉइंट पकड़ना है कि सर सबसे पहले मैं 4 पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करूंगा, उसके अंदर से सर कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाएगा मैं सॉल्व कर दूंगा। जब उस होद्दे तक आप पहुंच जाते हो उसके बाद आपको आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर जाना है, तब तक नहीं जाना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि सर हम सब कुछ करने जाते हैं, गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम के अंदर आप वहां पे फंस जाएंगे, राइट, वहां पे फंस जाएंगे। और कैट की एग्जाम ली जाती है, कभी आप मार्केट में जाके आपको कभी इसका यूज नहीं आने वाला है, लेकिन वहां पे आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी होगी, जो क्विक डिसीजन लेना होगा, आपको कौन से टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी, जो रियल लाइफ के अंदर आप इंप्लीमेंट करेंगे, उसका लर्निंग आपको यहाँ से लेना होगा कि सब कुछ हम नहीं कर सकते, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम निकल चुके। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2025, कैट 2026, दिस इज ऑल्सो फॉर यू, कि आपको सबसे पहले इसके अंदर मेहनत करनी है कि सर आइटम एंड अरेंजमेंट के 500 सेट में सॉल्व करके बैठा हूं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, सर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिस दिन अपन उस ओहदे तक पहुंच गए, समझ लेना आप 80% आपने सिक्योर कर दिया, एक सेट सॉल्व कर दिया, दैट इज अंकुर सर, वाई। कैन यू प्लीज गो टू द डेली रूटीन एंड स्टडी प्लानर ऑफ वर्बल एबिलिटी एक बार? थोड़ा अपन को आगे जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर आप आगे जा सकते हैं तो एक बार के लिए।
ओके सो गाइज, इफ आई टॉक अबाउट, मैं थोड़ा सा ना आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो हम स्टूडेंट्स के साथ बैठ के बनाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके का आपका प्लानर दिखना चाहिए अगर आप लेट्स से अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग जस्ट नाउ, हाउ द प्लानर विल लुक लाइक। इसको हम और क्वांटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन, अंकुर सर आपको लास्ट में दिखाएंगे कि आरसी ऑफ द डे, डीआईएलआर ऑफ द डे, क्वांटिटेटिव टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, उसको हम क्वांटिफाई करते हैं कि आपको कितना घंटा रफली चाहिए होगा। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो स्टडी प्लानर अगस्त किसी स्टूडेंट के लिए मुझे बनाना है, तो मैंने, अगर आप देखो, मैंने उस पर लिखा हुआ है रीडिंग, वोकैबलरी, पैसेज सॉल्विंग। पैसेज सॉल्विंग में मैंने क्या लिखा हुआ है, डोंट फोकस मच ऑन पैसेज सॉल्विंग, build affinity towards reading, go through the kind of questions, not the passages, kind of the questions asked in cat exam based on pvq, this will help to read the passage accordingly। ठीक है। वोकैबलरी, इनिशियल 2 मंथ्स इट हैज टू बी अ डेली प्रोसेस। रीडिंग के अंदर मैंने देखा है, राइट द मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल विच यू आर रीडिंग इन योर ओन वर्ड्स, राइट, मेक इट अ डेली रूटीन, ऑल दीज थिंग्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम जब फेस टू फेस बैठते हैं तो थोड़ा और डिटेल के अंदर लेके जाते हैं। नेक्स्ट अंको सर, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अगस्त के बाद हम जा रहे हैं, तो सो हम जा रहे हैं लेट से सितंबर में। सितंबर में कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि इसी चीज को फोकस करो, राइट। ये मैंने थोड़ा डिटेल बनाया हुआ है किसी स्टूडेंट के लिए जो कैट 2025 के लिए जा रहा था, मैंने 24 का नहीं है अभी, बट मैं तो आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए, अगर आप रीडिंग में क्या लिखा हुआ है, फोकस ऑन फॉरेन सोर्सेज ऑथर्स, राइट, बिकॉज कैट ने, अगर तुम एनालिसिस देखोगे, लास्ट 7 साल से कोई भी ऐसा पैसेज नहीं है जो इंडियन सोर्सेज में से लिया हो, राइट। सो आई नीड टू रीड अकॉर्डिंगली। अंकुर सर लेट्स गो फर्दर। अक्टूबर के अंदर अगर आप जाएंगे, अक्टूबर के अंदर सडनली आप देखेंगे मुझे किस किस जॉनरा में से पैसेजेस पढ़ना है, राइट, फिलोसफी, साइंस एंड टेक, साइकोलॉजी, सेक्टोलॉजी, आगे जाएंगे अंकुर सर थोड़ा सा हम लोग। सो ये सारे एनवायरमेंटल साइंस वगैरह आ जाएंगे। लेट्स गो फर्दर। इसके बाद हम लोग बोलेंगे बाय दिस टाइम एफिनिटी डेवलप हो गया, टोन, ऑथर का राइटिंग स्टाइल पता लग गया, काइंड ऑफ क्वेश्चंस पता लग गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता लग गया। अंकुर सर नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा जनवरी में, बच्चा क्या करेगा, फिर मैं उसको सोर्सेज दूंगा कि कहाँ कहाँ से तेरे को पढ़ना चाहिए। फिर आप जाएंगे अंकुर सर थोड़ा आगे फरवरी के अंदर, फरवरी के अंदर मैं उसको बोलूंगा कि तू क्वांटिफाई करना शुरू कर कि तूने कौन सी चीजें क्या क्या करी हैं। अंकुर सर थोड़ा आगे कि भाई तूने इतने पैसेजेस किए, इतना सब कुछ किया, इस मंथ क्या करेगा, इस वीक क्या करेगा, इस डे क्या करेगा, तो इसको क्वांटिफाई करना शुरू कर। अंकुर सर नेक्स्ट जाएंगे। सो दिस इज हाउ आप आएंगे मई जून के अंदर। ये मैं 25 वाले के लिए जो बनाया था कि मॉक सॉल्विंग, एनालिसिस, पास्ट ईयर पेपर, वर्क ऑन वीक एरियाज में, यहां तक जाऊंगा। सो मेरा ये प्लानर मैं 24 के लिए बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। 25 के लिए बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। 26 के लिए बना सकता हूं, बिल्कुल सुना सकता हूं। क्या ये कॉमन होगा? बिल्कुल कॉमन नहीं होगा, ये बच्चों के हिसाब से अलग अलग बनेगा। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है अंकुर सर, आई होप आई वाज एबल टू टेक इट अहेड। यस प्लीज। यस सो सर जो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगेन आपको जो ए एनालिसिस हमने जो बनाया हुआ था, राइट, जो आप आरसी का, मैं अगेन जो यहाँ पे डिस्कस करूँ, जो सर ने प्लानर बनाया, कि आपको रैंडमली कहीं पे डाइव नहीं करना है कि भाई सर मैं कुछ भी कर लूँ। नो भाई नो, राइट, मर जाएंगे अपन, फंस जाएंगे। इतना बड़ा सिलेबस है सर, जैसे अपन हिंदू न्यूज़पेपर लेके बैठेंगे पहले दिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट मेरा कहने का मतलब है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने साइकोलॉजी से क्वेश्चन आने वाला है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाला है। अब मेरे को तो सर अच्छा लगता है मोदी अंकल कहाँ घूम रहे मार्केट के अंदर, वही ढूंढने में, तो अपन जो पॉलिटिक्स के ऊपर पढ़ते रहेंगे, राइट। तो आप देख सकते हो कि सर उसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले, सर कुछ भी नहीं आने वाला है फॉर एग्जाम्पल। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सर मैंने तो ह्यूमैनिटी लिया था इसलिए कि मुझे सर साइंस एंड बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई उसमें से रोज क्वेश्चन आता है। तो गाइस अब उसमें से क्वेश्चन आने वाला है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, चाहे मुझे अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता है। क्लियर है बिल्कुल, राइट। मैं पीपीटी भेज दूंगा बेटा, डोंट वरी, राइट। तो सबके लिए पीपीटी बनाइए, मैं कोई मेरे लिए नहीं बनाए, दिस इज फॉर यू, एब्सोल्युटली आई विल शेयर विद यू गाइस, राइट। तो डोंट वरी अबाउट इट। सो हमको हमारा जो स्ट्रेटेजी, जो डे प्लानिंग बनाना होगा, दिस इज द सैंपल वी हैव क्रिएटेड फॉर द टुडेज मीटिंग। बट मैं ऐसा कॉन्ट के लिए, ऐसा एलआरडीए के लिए भी बनवा सकता हूँ, 1-to-1 बैठ के आपके इंटरेस्ट के बेस पे अपन बना सकते हैं, आपके जो फोर्टे उसके हिसाब से अपन बना सकते हैं, आप वर्क एक्सपीरियंस को पढ़ रहे हो वट एवर, उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, राइट। सो क्विकली आगे बढ़ते हैं। जो एलआरडीए की बात किया, राइट, जो कॉन्ट की बात करूं, राइट, तो बेसिकली इसके अंदर से सबसे ज्यादा जो डर लगता है, जो फोबिया की बात कर रहे थे, राइट गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 से लेके 2023 तक आप देख सकते हो, अरिथमेटिक रूल करता है, आधा पेपर वहां से होगा। सर खाली आधा पेपर हम कर लेंगे, ये सॉरी, खाली अरिथमेटिक कर लेंगे, हमारा आधा पेपर निकल जाएगा। सर हमको दूसरी चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि सर, हमारा प्रॉब्लम है कि सर एलजेब्रा के अंदर बायनोमियल थ्योरम आता है जो सबसे टफ लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 4 साल में भाई बायनोमियल थ्योरम में से कितने क्वेश्चन आया,
बाइनोमियल थ्योरम में से कितने क्वेश्चन आया? एक भी क्वेश्चन वहां से आया नहीं है, आप देख सकते हो। तो जहां से क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है तो उसकी मैं चिंता क्यों करूं? जहां से क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है तो उसकी अपन चिंता क्यों करें? सो मेक श्योर कि गाइस आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। जो मैं ऑलवेज स्टूडेंट को बोलता हूं कि गाइस एक बार अपना ईगो को साइड में रख के आप हमारी बात को मान लीजिए। हम हर साल एग्जाम लिखते हैं, हम पिछले 10-11 साल से इसके अंदर है। हम मैं जो आपको बता रहा हूँ सबूत के साथ, मैं आपको प्रूफ के साथ, एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ। मैं ऐसा कोई भी बात नहीं बता रहा हूँ कि कोई मेरे को पता है कि आगे एग्जाम में क्या होने वाला है। राइट, कोई प्रिडिक्शन बेस्ड नहीं है, दिस इज एवरीथिंग बेस्ड ऑन द डेटाबेस। आप देख सकते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस में से क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे, उसके बिना पेपर बने नहीं सकता। तो हमको यही जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है उसको उठाना है। राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री की मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है। भाई क्यों डरना है सर? ट्राइंगल में से क्वेश्चन आने वाले तो ट्राइंगल को पहले कर लेंगे, सर्कल में से क्वेश्चन आने वाले सर्कल को कर लेंगे, बहुत हो गया सर। हमको तो क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन ही 8 सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे अपन 16 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो नासा वाले उठा जाएंगे, क्योंकि 99 से ऊपर परसेंटाइल चले जाएंगे। वो हमको करना नहीं है। तो हमारे को बस सर क्वेश्चन छोड़ने का भी स्कोप है। मेक श्योर कि आपको इसी स्पेसिफिक टॉपिक में से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसी ये जो मैं आपको इसको और थोड़ा शॉर्टन कर दूं, राइट, इसको मैं थोड़ा, आई एम श्योर कि थोड़ी स्क्रीन मेरी लैग कर रही है। राइट, अच्छा, बाय द वे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक चुनना है और कौन से टॉपिक छोड़ भी देना है, उसकी भी मैं बात करूंगा। बिफोर आई गो देयर गाइस, आप मुझे बता सकते हो कि आप एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस को चूज करेंगे? आपके पास थ्री टाइप ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। क्विकली रिप्लाई द चैट बॉक्स। आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्विकली गाइस? एवरीवन, आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एवरीवन, सर आर यू गेटिंग द आंसर? आप म्यूट हो सर। नो सर। गाइस वन क्विकली, एंड टू। देखो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी थॉट प्रोसेस कहां से अपन चेंज करेंगे। राइट, जो क्रैक करने की बात कर रहा हूँ। राइट, कि भाई आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। आप कहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? आई एम श्योर कि 99% जनता ने आंसर दिया होगा लेवल 1, बट मेरा आंसर होगा हार्ड। अब आप सोचेंगे सर आप सीरियसली पागल हो गए हो सर, संडे की मॉर्निंग आपको सुनने के आगे आप तो कुछ भी बोलने लगे हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्त, अपन सबसे पहले हार्ड क्वेश्चन को चुनेंगे, क्योंकि ए इजी होता है ढूंढने में, क्योंकि हमको आता नहीं है सर, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। सबसे पहले अपन हार्ड क्वेश्चन को पकड़ेंगे। क्या इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे प्रधान सर? क्या अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, सर बिल्कुल नहीं। इसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सर? लेवल 3 के क्वेश्चन को पकड़ के बाहर फेंक देंगे। एक क्वेश्चन को पकड़ के हम बाहर फेंक देंगे सर, इसको गलती से भी टच नहीं करना है भाई, इसको गलती से भी टच नहीं करना है। अब क्या करेंगे? अब सर अपने पास पेपर में बचा ही वो जो हमको पसंद है, इजी एंड मीडियम, बस इसको सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग मी? यस सर, आर यू गेटिंग मी एवरीवन? समझ सकते हो गाइस? कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? सबसे इजी होता है टफ क्वेश्चन चुनने का, उसको पहले उड़ा दो 5 मिनट बिगाड़ के। आप ये ढूंढ लो कि मुझे कौन से क्वेश्चन चुनने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं चुनने हैं। उसको हार्ड क्वेश्चन सबसे पहले दिख जाएगा, क्योंकि आता नहीं है उसको। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए 22 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन मैथ्स के उड़ गए सर, सारे हार्ड थे, अपन तो बाहर आ गए मस्त चिल मारा, ऐसा नहीं है भाई। राइट, तो सर हार्ड क्वेश्चन को पहले बाहर निकाल देंगे, मीडियम और इजी क्वेश्चन बचा है उसमें से इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, मीडियम में आगे जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल एवरीवन? तो आपको, अच्छा, ये स्ट्रेटेजी कहाँ पे? इसकी कोई मार्केट में दवा तो मिलती नहीं है कि सर गोली खा ली और अंदर से आवाज आया कि एक क्वेश्चन ईडीएम है एक क्वेश्चन हार्ड है, ऐसा तो होगा नहीं। आपको मॉक लिखनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, उसमें यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या टफ लगता है, आपको क्या इजी लगता है, आपको उसका बिल्कुल आपके रूटीन के अंदर उसको लाना होगा। उस दिन आप एग्जाम के अंदर भी कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगेन मैं जो क्वांट की बात करूँ, राइट, स्पेसिफिकली जो मैं मैथ्स की बात करूँ, तो मैं आपको यहाँ पे खाली सैंपल बताया हुआ है कि आपको जो हार्ड क्वेश्चन कैसे उड़ा देना है। जो मैंने उसका नाम दिया है 50-30-20 रूल्स, मतलब 50% पेपर के अंदर ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके इजी होंगे, 30% टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके मीडियम होंगे, और 20% आपके हार्ड होंगे। हार्ड तो मैंने निकाल दिया, हार्ड को तो मैंने निकाल दिया, अब मेरे पास बचा है इजी और मीडियम। गाइस ये स्क्रीन को आप देख लीजिए, इन
इन टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, नीचे आपको टोटल की कॉलम दिखेगी। 2022 की मैं बात करूं और टोटल क्वेश्चन जो आए थे उसमें से 18 क्वेश्चन खाली आप देख सकते हो कि इन लिखे हुए टॉपिक्स के अंदर थे। गाइस आपको ये टॉपिक को पकड़ना है। 2023 की बात करूं गाइस, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, आउट ऑफ 22 क्वेश्चन आप देख सकते हो 20 क्वेश्चन यही टॉपिक्स में से था जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। गाइस आपको इसके अलावा कोई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, आप मेरे पे भरोसा करिए, मैं आपको बता रहा हूं दावे के साथ, इन टॉपिक से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा दोस्त। आपको खाली 10 क्वेश्चन करेक्ट करना है प्लीज, रैंडमली नहीं चलना है दोस्त, अपन मर जाएंगे। एवरीवन, आर यू गेटिंग मी? कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? आप देख सकते हो कि कहां से आपका पेपर बन रहा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहां से आते हैं। आप देख सकते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज, इसमें पूरा क्वांट आ गया। दिस इज नॉट ओनली फॉर अरिथमेटिक और एनीथिंग, दिस इज एंटायर क्वांट आई हैव कवर्ड हियर, राइट? कि आपको कहां से टॉपिक में से क्वेश्चन उठाना है। ऐसा मैं आपको वीआरसी और एलआरडीए का ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मैंने क्वांट का थोड़ा मिक्सचर करके बता दिया क्योंकि उसके अंदर ज्यादा टॉपिक्स है। इसके अलावा दोस्त कुछ भी नहीं पकड़ना है। आई थिंक इसके अंदर जो मैं बात करूं, आपको खाली एलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ्स एंड इनइक्वालिटीज, फंक्शन, एपीजीपी एंड लॉगरिथम, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बाकी सारी चीज आप देख रहे होंगे अरिथमेटिक के। ज्योमेट्री से जो मैं बात करूं तो आपका पॉलीगॉन्स एंड मेंसुरेशन आएगा और ट्राइंगल आएगा, बस। इसके अलावा दोस्त अपन कुछ भी नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग मी? इसके अलावा अपन कुछ भी नहीं करेंगे। सो गाइस दिस इज हाउ हम जो आपको प्रिपेयर कराएंगे। आपको लगता होगा कि सर हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट? दिस इज हाउ द स्ट्रेटेजी यू हैव टू क्रिएट, राइट? और जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं यहाँ पे, कंट्रोल योर अटेम्प्ट्स, कंट्रोल योर अटेम्प्ट्स, राइट? आपके अटेम्प्ट्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे आपके पास 4 टाइप ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, राइट? आपके पास, अच्छा आप मुझे बता सकते हो कि ये ए बी सी डी, ये 4 में से आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कौन से छोड़ देंगे? घनश्याम, आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है वो बेटा उसका आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। कौन से क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे और कौन से छोड़ देंगे? कुड यू प्लीज रिप्लाई द चैट बॉक्स, ए बी सी डी में से कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन से छोड़ देंगे? गाइज मैं आपको बता रहा हूं, देखो इसके अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन है। आई नो द क्वेश्चन एंड इट इज इजी। आपने उस क्वेश्चंस की लॉट ऑफ प्रैक्टिस किया है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। आई नो द लॉजिक सो शुड आई ट्राई, मुझे पूरा लॉजिक इसका पता है, दैट्स व्हाई मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। सी आई नो द टॉपिक सो शुड आई ट्राई, मुझे टॉपिक पता है, मुझे फॉर्मूला आती है सर, पाइथागोरस अंकल की फॉर्मूला होती है एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए सर मुझे क्वेश्चन के अंदर कूदना चाहिए। और डी तो आई एम श्योर कि अपन को उड़ा देना चाहिए क्योंकि सर उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं। गाइस आपको ओनली ए एंड बी दो ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, सी एंड डी सर बिल्कुल हमको छूना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करने जाएंगे, ट्राइंग इज क्राइम, देखो आपकी पूरी दुनिया बोलेगी कि ट्राई करने से जीवन सक्सेस होता है, ट्राई करते रहना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा केट एग्जाम के अंदर ट्राइंग इज क्राइम। उसका मैं रीजन देता हूं क्यों ऐसा क्राइम है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने खाली 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे चुन लिए जिसके अंदर आप ट्राई करने गए, आपने 2-2 3-3 मिनट उसके अंदर बिगाड़ दी, 12 मिनट आउट ऑफ 40 मिनट्स आपने 12 मिनट्स वहां पे ट्राई करने के अंदर बिगाड़ दी और एक भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ। अब आप समझ लीजिए आपके पास 28 मिनट बची है खाली बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आप महसूस कर पाएंगे कि आपको कितना प्रेशर बढ़ता जाएगा अपने आप के ऊपर। सो गाइस बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, सारे क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि सर मैं सॉल्व कर सकता हूं, बट ना भाई अपन को बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। मेक श्योर ट्राई करने जाएंगे तो मर जाएंगे, राइट? अपन को ध्यान रखना है अपन को। इंपोर्टेंट ऑफ मॉक एनालिसिस, जो मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप मॉक लिखो, जो प्रशांत सर ने बोला कि कैट 2025 के स्टूडेंट के लिए हम 2025 से मॉक करवाना चालू कर देते हैं और उस मॉक के अंदर जो हम यस यस जो मॉक के अंदर हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे, मतलब आपका जो रूटीन्स बनवाएंगे, आपका जो रिपोर्ट कार्ड हम बनवाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, टॉपिक एंड फॉर्मूला इज द प्रॉब्लम, कैलकुलेशन इश्यू या सिली मिस्टेक या टाइम मैनेजमेंट, हम आपको इसके अंदर प्रिपेयर करेंगे जहां से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, जहां से अपन क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं आगे के लिए, राइट? दिस इज द स्टडी प्लानर, आई थिंक दैट इज ऑलरेडी डिस्कस। मैं ज्यादा टाइम इसके अंदर नहीं बिगाड़ता हूँ, मैं पीपीटी बिल्कुल आपको शेयर कर दूंगा, दिस इज फॉर यू, राइट? थोड़ा मैं बात कर देता हूँ इको
कोचिंग के बारे में तो आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा, स्टिल में बता देता हूँ कि हम आपको जो मटेरियल देते हैं उसको मटेरियल को हमने डिजाइन ही उस वजह से ऐसे किया हुआ है जिसके अंदर आपको इजी मीडियम एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग। आप थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन पोर्टल जिसके अंदर मैं आपको बोलूं, जो सर बता रहे थे, ई कोचिंग एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे, उसकी जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितना मटेरियल आपको मिलेगा। डेडिकेटेड कैट एस्पिरेशन के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन है। 300 से ज्यादा वीडियो लेक्चर है बेसिक टू एडवांस जो आपको ऑलरेडी दिया जाएगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस हम रोज जो पढ़ाएंगे वो डिफरेंट 100+1000+ टेस्ट इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, सब्जेक्टिव, टॉनिक टेस्ट एंड डिफिकल्टी लेवल वाइज, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन के अंदर है। आपके अंदर दम है उतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। डेली टॉनिक टेस्ट, वर्ड ऑफ द डे, वोकेबुलरी ऑफ द डे, आरसी ऑफ द डे, कॉन्ट के अंदर भी, एलआरडीए के अंदर भी सारी चीज आपको आती रहेगी। एंड केट एग्जाम के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन एबिलिटी टेस्ट, जो भी कुछ करना होगा वो भी हम आपको कवर करा के देंगे, वो भी आपको वहां पे पूरा कवर हो जाएगा। राइट, दिस इज द डाउट कॉर्नर, जो ऑलवेज आपके ग्रुप के अंदर आप डाउट भेज सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेंगे। जो बूस्टर कोर्स के अंदर बच्चे उसको भी देख रहे होंगे, वहां पे रेगुलरली आपको आंसर मिलते होंगे। बेसिक मैथमेटिक्स के क्लासेस होंगे, बहुत बार स्टूडेंट को बेसिक मैथ्स के अंदर समस्या आती है तो उसके भी हम क्लासेस कराते हैं। अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक स्नैप, एनमेट, जेट, महाराष्ट्र सीईटी, सीमेंट, ये सारी जो एग्जाम है, राइट, वो सारी एग्जाम्स को भी हम कैटर करते हैं और उसको भी हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। जनरल नॉलेज इन एवरी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। एल्जेब्रा 30 क्वेश्चन आते हैं कि 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन द ऑप्शन आंसर के बेस पे आप कैसे आंसर निकाल सकते हो, वैसे भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं एक्स्ट्रा वर्कशॉप के अंदर। प्रोफाइल बिल्डिंग, ज्योमेट्री, आरसी इन 7 मिनट, जीके सेशन, ये सारी बात जो मैंने आपको बताया, प्रेजेंटोपीडिया जो आपके इंटरव्यू के लिए काम आएंगे, ये सारी बात यहाँ पे हम आपको कवर करा के देंगे। राइट, दिस इज अवर रिजल्ट। इस बार जो मैं आपको बात करूँ कैट 2023 जो एवर टफ एग्जाम थी, मैं उसकी बात करूँ तो आई एम कोलकाता के अंदर से, मैं आपको गुजरात की जो अंदर बात करूँ तो ओनली खाली एक सेंटर में से 7 बच्चे आई एम कलकत्ता में गया, ऐसा ओनली इंस्टीट्यूट है। राइट, खाली आई एम कलकत्ता तक हमने इतने पहुंचा है, प्लस आई एम अहमदाबाद और बेंगलोर के स्टूडेंट भी आप देख सकते हो। दिस इज अदर रिजल्ट। बेंगलोर आई एबीसी के अलावा जो बच्चे गए हुए, जहाँ पे भी हिंदुस्तान के लगभग हर कॉर्नर के अंदर स्टूडेंट है, आप देख सकते हो। राइट, सो दिस इज द माय लास्ट स्लाइड। राइट, दिस इज अबाउट द कोर्स एंड एवरीथिंग। राइट, यहाँ पे आपको जो नीचे नंबर दिया हुआ है, इट इज माय नंबर। आप इनकेस आपको कभी भी कांटेक्ट करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, दिस इज माय नंबर, इस जो स्क्रीन के अंदर दिख रहे हैं। राइट, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के लिए जो आप अप्रोच कर रहे हो, तो बिल्कुल आप यहाँ पे कब से, उसकी स्टार्टिंग डेट से लेके, जीमेट नहीं, सॉम हम जीमेट एग्जाम्स को कवर नहीं करते, ओमेट के अंदर जीमेट एग्जाम को हम कवर नहीं करते। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपके कोई भी क्वेश्चन है तो क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रैश कोर्स जो 12 अगस्त को हम नेक्स्ट बैच लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी, 2 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज द थर्ड बैच हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसके अंदर हम 12th को जा रहे हैं, उसके अंदर हम करेंगे। राइट, मैं जो प्राइस की बात कर दूं, बहुत सारे बच्चों के दिल के अंदर एक क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे बच्चों के अंदर। राइट, तो जो मैं क्रैश कोर्स की बात करूं, राइट, क्रैश कोर्स की जो पहले वाली प्रोडक्ट है कैट 2024 की, जिसकी कीमत 15,000 रुपीज है। पूरा कोर्स, इसके अंदर आपको खाली क्रैश कोर्स मिलेगा। नवंबर में आपकी एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको वहां पे ग्रुप डिस्कशन, पर्सनैलिटी और रिटन एबिलिटी टेस्ट तक के प्रिपरेशन कराएंगे। राइट, उसकी प्रिपरेशन कराएंगे, जिसकी जो कॉस्ट रहेगी दैट विल बी 9,000 रुपीज। इनकेस आप आज रजिस्ट्रेशन कराते हो फॉर टुडे ओनली, तो आपकी प्राइस 9,000 रुपया रहेगी, जो 15,000 है। आपको कोई भी प्रोडक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, आपको ओनली 1,000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 7 डेज के लिए आप क्लास अटेंड कर सकते हो। 7 दिन के बाद आपको लगता है कि सर आपकी सारी बातें बहुत अच्छी, आप अच्छे दिख रहे थे, अच्छे बोल रहे थे, लेकिन हमको पसंद नहीं आया, तो आप 1,000 रुपीज बिल्कुल रिफंड कर सकते हो विदाउट सिंगल क्वेश्चन। हम फ्री में डेमो इसलिए नहीं देते, बाकी पता है हम फ्री की क्लास करते हैं, उसमें हजारों बच्चे आते रहते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी समस्या रहेगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप 1,000 रुपीज पे करके हमारे जो एक्चुअल बेस है उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करना। आपको इसमें कोई फर्दर क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा नंबर है, आप देख सकते हो। आई एम वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ द कोचिंग। जो मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में बातें हो रही है। मेरा नंबर, मेरी गूगल में डिटेल्स, एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। सो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, 1,000 रुपीज आपको रिफंड मिल जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी स्टूडेंट 1,000 रुपये के लिए किसी के दिल में ऐसा रह जाए कि कोचिंग वालों ने हमारा 1,000 रुपया वापस नहीं दिया। राइट, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप 7 दिन मजे से पढ़िए, और उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो आगे की फीस पे करना है, अदरवाइज नहीं करना है। राइट,
दूसरा जो मैं कैट 2025 की जो बात करूं, राइट, इसकी अंदर जो फाउंडेशन कोर्स की मैं बात करूं, फाउंडेशन कोर्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो हमने फ्रॉम अगस्त से लेकर दिसंबर तक, इसकी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको दूंगा। अगस्त से लेकर इस दिसंबर, 4-5 महीने का हमने कोर्स लॉन्च किया है। उसके अंदर आपको 5,000 रुपीज ओनली फीस रहेगी, आपकी खाली 5,000 रुपया फी रहेगी, जिसके अंदर आरसी, मतलब वीआरसी, एलआरडीए और कौन, इसका बेसिक मिलेगा। इसका बेसिक हम फाउंडेशन कोर्स के अंदर सिखाएंगे कि सर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है। और ये 4 महीने के कोर्स के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है कि सर मुझे अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है, तो जो भी फीस होगी उसमें से 5,000 रुपया आपका माइनस हो जाएगा और आपको बाकी की फीस पे करनी होगी। क्योंकि कई बार बच्चों को होता है कि सर वो 40-50 हजार रुपया फीस एक साथ नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आप 5,000 रुपए से फाउंडेशन कोर्स से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और एक कोर्स आपको हर जगह पे हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ आपके नॉन कैट के एग्जाम्स किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब जगह पे आएगा आएगा, राइट। जो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कोर्स है विच इज कैट 2025, जो बेसिक से एडवांस तक रहेगा, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा दैट वुड बी मई 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आपका 2 साल का जो कोर्स है, इसकी फीस जो है वो 50,000 रुपया फीस है, लेकिन आप आज के दिन में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको 35,000 के अंदर पूरा कोर्स मिलेगा। अगेन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट के लिए आपको खाली 1,000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करना है। 7 डेज के लिए रिफंडेबल होगा, कोई भी कोर्स के अंदर आप जाते हो। एंड तीनों दिन कोर्स में से आपको जो भी लगता है कि आपके लिए सुटेबल कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रिप्लाई द चैट बॉक्स। आई एम श्योर कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। बीकॉम में 4 साल का हो गया है, नाउ व्हाट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर। क्या 2024 के लिए जूम यूजर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई इसे आज से ही चालू कर दो, उसके अलावा कुछ स्कोप ही नहीं है। टिप्स एंड ट्रिक्स सॉल्विंग द आरसी एंड हाउ टू अंडरस्टैंड ऑथर्स। कृष्णा वो वीआरसी का जो सेपरेट क्लास होता है उसके अंदर सर बताएंगे। आई थिंक प्रशांत सर अभी यहाँ पे नहीं है, राइट। तो आप उनके अंदर आप देख सकते हो, वहाँ जो क्लास है, रियल क्लास जो होती है, वहाँ पे आपको सर बताएंगे। कट ऑफ कॉलेजेस लिस्ट, सान्या मेरे को आप मेरे नंबर पे हाई करके व्हाट्सएप में भेज देना, आपका नाम भेज देना, मैं आपको वहाँ पे जो जो मटेरियल चाहिए मैं आपको शेयर कर दूंगा। तिशा बेटा आप बोल रहे हो कि सर हिंदी मीडियम से और मेरी इंग्लिश वीक है। बेटा मैं आपको बताता हूँ, प्रिया शाह का भी जो आपको मैंने यहाँ फोटो दिखाया था, आई एम कलकत्ता, इस बार उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। वो गुजराती मीडियम से उन्होंने आपकी पढ़ाई किया हुआ था, आई एम कलकत्ता तक पहुंचे। उन्होंने जून महीने में एक मॉक टेस्ट लिखी थी, उसमें उसका 2 मार्क्स था। आपको भरोसा नहीं आता, ई कोचिंग की एप्लीकेशन के अंदर उनका इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, वहां पे पढ़ा हुआ है, आप सुन लेना। तो तिशा बेटा ऐसे बहाने हैं कि सर मैं ये मीडियम से वो मीडियम से वो, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, सीधी बात है। एवरीथिंग इज द पॉसिबल, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी आपको सिखाने वाला हूँ, मुझे मतलब ही नहीं है कि आपका इंग्लिश कैसा है। सर मैं प्लीज रिसेंड द टुडेस पीडीएफ एंड बी स्कूल्स एंड कट ऑफ, श्योर आई विल शेयर इट, मैं भेज दूंगा। पालवी बोल रही है कि सर आई एम गेटिंग एडमिशन इन आईएफएम मोर डिफिकल्ट देन आई एम। पालवी आई एम अहमदाबाद, आई एम बेंगलोर, आई एम कलकत्ता, एफएम दिल्ली और एसपीजन मुंबई, ये सब बराबर वाली कॉलेज है। इसके अंदर पहले आप 99.99 परसेंटाइल लाइए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। वो नहीं आया तो फिर अपन रेस में से आउट हो जाएंगे। Actually, I come through the advertisement Instagram which mentioned the coaching is provided the free crash course. फ्री क्रैश कोर्स घनश्याम नहीं है कहीं पे बेटा, आपको अपने, हम एवरी ईयर आजाद अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, तो 15 दिन के लिए वीडियो लेक्चर की जो प्रोडक्ट है वो हमने फ्री करके रखी है, वो भी 15 अगस्त को लॉक हो जाएगा। क्रैश कोर्स बेटा कहीं पे भी फ्री नहीं है। Alright, so suppose someone enroll if you in your batch 2024 can 75% not get the next. Yes, so हम बेटा नेक्स्ट बैच के अंदर आप कर सकते हो। आपको फीस मैंने यहाँ बता दी है, उसमें से जो भी फीस आपने क्रैश कोर्स में पे किया होगा वो माइनस हो जाएगा। आप कोई भी कोर्स के अंदर आप अपग्रेड करते हो तो आपको पुरानी फीस आपकी माइनस हो जाएगी, जो भी आपने पे किया होगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम। अभिषेक बेटा अभी हमने फ्रॉम नेक्स्ट वीक, आई थिंक 15 तारीख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मेरे को कनेक्ट करना है इस नंबर पे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सीमेंट एंड महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम्स की स्पेशल बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ पे जो महाराष्ट्र से, कुड यू प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। सर बेसिक से करना है और एक साथ 50,000 नहीं भर सकते तो फिर इंस्टॉलमेंट में भर सकते। सिमोन बेटा कर सकते हो बेटा, कनेक्ट करना मेरे को, या तो फाउंडेशन के पहले 5,000 रुपये वाला कोर्स है वो ज्वाइन करिए, फालतू आप ज्यादा पैसा मत लगाओ, राइट, जो आपको लगता है कि बेसिक रिक्वायर्ड है तो।
खाली वीआरसी के लिए स्पेशल कोर्स अभी कोई नहीं है बेटा, आएगा तो डेफिनेटली आई विल कनेक्ट यू। आप अपना नाम नहीं लिखा रहे हो, आप मैं रियल में करके आपको बोल दे रहा हूँ। सर एससी बैकग्राउंड में कैट क्राइटेरिया क्या है? श्रद्धा बेटा बैकग्राउंड लेके मत चलो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, बट उसको अभी दिल में लेके मत चलो। कौन कौन क्या पढ़ाएगा? विनायक बेटा मैं खुद मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, प्रशांत सर वीआरसी पढ़ाते हैं, शैलेश सर लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाएंगे। इसके अलावा भी बाकी सारे फैकल्टी है, जैसे भार्गव सर खुद क्वांट पढ़ाते हैं, इज 99.93 परसेंटाइल एंड गुजरात टॉपर्स इन कैट 2023 इन क्वांट सेक्शन, राइट। तो ये सारे फैकल्टी आपको बताएंगे, ये सारे फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, राइट। सो फैकल्टी में आपको कोई डाउट्स नहीं आएगा। हम 10 से ज्यादा फैकल्टी है जो सारे इक्वल लेवल के फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। डू यू कवर एनमेट जेड एज वेल? यस विमल, आप क्रैश कोर्स में बेटा कवर नहीं करेंगे, बाकी में हम कवर कर लेंगे। राउंड ऑफ हाउ मच कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सर, एंड ऑल्सो जीमेट क्लासेस बताओ। सो हम बेटा जीमेट क्लासेस का मैं कुछ आपको मदद नहीं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि हम नहीं प्रिपेयर करवा रहे। लेकिन उसके अंदर जो कोई कॉमन टॉपिक्स तो आपको करना है तो आप कर सकते हो, राइट। चलो डन। आई एम श्योर कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। आपका कोई भी डाउट है आप करेक्ट करना। आज मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आई विल डेफिनेटली शेयर द ऑल मटेरियल्स विथ यू गाइस, दिस इज फॉर यू। ये आपके लिए है, उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो मुझे आपको नहीं देने। आप मुझे पिंग करते रहना व्हाट्सएप के अंदर, आपको जो जो चाहिए आई विल डेफिनेटली शेयर। एंड मेक श्योर कि आपको इस बेनिफिट का जो बेनिफिट लेना है तो गाइस प्लीज आज के दिन में एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करा देना। उसके बाद आपको जो भी फीस यहाँ पे मेंशन किया वो फीस पे करनी पड़ेगी, उसमें मैं आपको कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो विद दिस वर्ड्स गाइस थैंक यू, एंड आई एम श्योर कि आपने एंजॉय किया होगा आज के सेशन के अंदर। बिल्कुल आप रिप्लाई कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर कि आपको आज का क्लास, आज का सेशन कैसा लगा। इज इट वाज फ्रूटफुल और टाइम वेस्ट और टाइम इन्वेस्ट और एनीथिंग यू वांट टू से, यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। चलो थैंक यू गाइस। सो हम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। देखो आप पहली बार कैट लिख रहे हो, मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। रियल में आप कर सकते हो बेटा, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर 3 महीने 4 महीने में कैट की एग्जाम पास कर सकते हैं, भाई आप ही के लिए सेशन रखा था। मैंने जो टॉपिक बताया उतना टॉपिक सॉल्व करके जाना है, आराम से आ जाएगा वहां। मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप सॉल्व ही ना करो क्वेश्चन तो कुछ नहीं होगा। घनश्याम बेटा वो आपका डिसीजन होगा, आप डाउटफुल हो सर मैं इन्वेस्ट करूं इन्वेस्ट ना करूं, तो बेटा उसमें तो मैं क्या आपको मदद करूं। तो बी फार्मा वाले बिल्कुल कुणाली कृष्णाली आपको देना चाहिए, आपके लिए तो और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको डाइवर्सिटी का भी आई थिंक बेनिफिट मिलेगा, राइट। चलो गाइस थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं। और आपको जो जो लोग को जो भी मटेरियल चाहिए मुझे चैट बॉक्स में पिंग करते रहना, राइट। चलो मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय।